Good evening, everyone. This is Pradeep, Ambassador of Change from GETI, the Global Education and Training Institute of Lucknow. And we are the premier institution for teacher training and principal training. We have several in-service and pre-service programs. And for more information on this, please go to 740-840-1000. Right now, you are on a disruptive education platform provided to us by our mentor, Dr. Sunita Gandhi. And on this platform, we have met with and interacted with more than 1,300 educators from India and all over the world. And this evening, we have for you Ms. Mansi Wadhwani. She's a freelance educator from Gwalior, Madhya Pradesh, and she's very young, but she has 10 years of experience. She's a BCom and an MCom and a DLED and a CTET qualified person. Okay, she is, as I said, presently working freelance and has been a tutor since 2013. She's into real-time problem solving. She's a quick learner and grasps all the new concepts and updates. Her hobbies are reading general awareness and listening to music. She will be speaking to us today on the true meaning of education. Good evening, ma'am. Welcome and thank you for being with us. And over to you, ma'am. Good evening, sir. I want to start my speech or the topic with a quote that is of Albert Einstein. That is, education is not learning of fact, but the training of the mind to think. As we are see, अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो एजुकेशन का मतलब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप लोग गुड परसेंटेज गेन कर लो, आपको गुड जॉब मिल जाएगी. बट अकॉर्डिंग टू मी इसका मतलब एजुकेशन नहीं है. एजुकेशन का मतलब ये है कि आप बच्चे को ये सिखाएं कि आपने जो नॉलेज गेन किया, वॉट एवर द नॉलेज यू आर गेनिंग, इट शुड बी प्रैक्टिकल. मतलब जब तक आप नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, उसका मीनिंग वो नॉलेज नहीं होगी, वो एजुकेशन नहीं है. अगर आप सिर्फ मार्कशीट के बेस पे बच्चे को एजुकेशन दे रहे हो, इट डजंट मीन द रियल एजुकेशन. एजुकेशन इज व्हाट दैट force you to think, force you to apply your all knowledge in practical life. If we see the practical example, if we see the real example, we have many kind of mark sheets who are gaining the 90% above the 95, but they are still unemployed. And the students who are gaining 55% in 10th board and 12th board, they are appearing for IAS and not only appearing, but they are cracking. तो वो पास भी कर रहे हैं उनको. तो व्हाट इज अ ट्रू एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब ये है कि आप बच्चे को ये नहीं बताएं कि आपको सिर्फ मार्क्स लाने हैं, आपको सिर्फ मार्कशीट अच्छी करनी है, आपको सिर्फ अच्छा बनना है, बल्कि आपको ये सिखाना है कि जो आप एजुकेशन गेन कर रहे हो उसका तभी ट्रू मीनिंग होगा जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकोगे. तो इन दिस कोट वी हैव टू स्टांजास दैट लाइक एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट. मतलब फैक्ट अगर हम देखें तो हमें तो फैक्ट कहीं पे भी मिल जाएगा, हमें यूट्यूब पे मिल जाएगा, हमें गूगल पे मिल जाएगा. अगर फैक्ट को लर्न करना ही एजुकेशन है तो फिर वो तो गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उसको सिर्फ रट के हम लोग एजुकेशन नहीं गेन कर सकते. पर ये ट्रेनिंग है. हमारे माइंड को इतना ट्रेंड होना है कि कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमारे पास नॉलेज है, आपने बीएड कर रखा है, आपने एमकॉम कर रखा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बट आप अनएम्प्लॉय हो, आपको अपने लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आ रही, इट्स मीन्स यू आर नॉट एजुकेटेड पर्सन. अगर आपके पास कोई नॉलेज है और आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर अ लिटरेट पर्सन. एज आई टेल यू अबाउट द एजुकेशन, एजुकेशन इज अ गेटवे टू सक्सेस. एजुकेशन एक वो चीज है, एक वो की है जिससे हमको सक्सेस मिल सकती है. आज के टाइम में all are thinking to earn money by hook or by crook, but how? They are going to institute, going to school, going to coachings, they are gaining knowledge as well as they are getting to they are spending too much time there, but are they getting success? क्या वो सक्सेस गेन कर रहे हैं उसी रेशो में जिस रेशो में वो टाइम को और मनी को स्पेंड कर रहे हैं? अगर आज आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आज इंजीनियरिंग की बात कर लें, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेनी काइंड ऑफ फील्ड्स आर देयर,
but still the ratio of unemployed person are more than the employed person. Why it is so? If all are gaining education, because they, I think they don't know how to apply the knowledge in practical life. सक्सेस कैन बी अचीव्ड व्हेन पीपल हैव नॉलेज. अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम सक्सेस गेन कर सकते हैं. आप कुछ, आपके पास जो भी नॉलेज है, आपकी लाइफ में कोई भी सडन प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको अप्लाई करिए अपनी नॉलेज को. और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पा रहे हैं, इट्स मीन्स आपके पास एजुकेशन है. सक्सेस को हम अचीव कर सकते हैं नॉलेज से, स्किल से और गुड एटीट्यूड से. अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आप हमेशा ये बोलेंगे कि हम तो एजुकेटेड हैं, हमारे पास डिग्री है, बट स्टिल यू आर अनएम्प्लॉयड, मीन्स आपको लिटरेट नहीं माना जाएगा, मीन्स यू आर नॉट अ एजुकेटेड पर्सन. आई बिलीव दैट एजुकेशन इज द बेस्ट वे which shows us many way to lead and utilize our life properly. मतलब एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है, एक ऐसा मार्ग है जो आपको सक्सेस की तरफ भी ले जाएगा और आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूज करने का सबसे बेस्ट वे एजुकेशन है. बट एजुकेशन भी सही मीनिंग में होनी चाहिए. आज हम, हमारे पास बहुत सारे वे हैं जिससे हम एजुकेशन गेन कर सकते हैं. द बेस्ट वे इन टुडेज सिनेरियो इज यूट्यूब. यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे हर एक टॉपिक पे. पर क्या वो जो नॉलेज आपने यूट्यूब से गेन की, वो सही में आपको प्रैक्टिकल यूज में आप यूज कर पा रहे हैं? आपको ये देखना है. अगर आपने नॉलेज गेन की है, अगर आपको उसका प्रैक्टिकल यूज पता है, तो आपके एजुकेशन का सही मीनिंग है, तो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉपर वे में. बट अगर आप उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे हैं, देन आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज द एजुकेशन. हमें बहुत सारे वे दिखते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारी लाइफ में जो हमें दिखाते हैं, तरीका बताते हैं कि हम कैसे यूटिलाइज करें अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी पावर को, अपने माइंड को. आप, आज बहुत से बच्चे भी ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी तो मार्कशीट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए. फिर उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछो, अगर आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आ जाए, ये प्रॉब्लम आ जाए, तो वो ही कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है. इट्स मीन्स दे जस्ट मग अप द नॉलेज दैट इज रिटन इन द बुक. वो बुक भी तो किसी ह्यूमन बीइंग ने लिखी है. क्या उनने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया था? उनने प्रैक्टिकल अप्लाई किया, हमने उसे रीड किया, जस्ट हमने ग्रास्प कर लिया. तो ये एजुकेशन नहीं है. एजुकेशन हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर ओन थॉट. हमारे खुद के थॉट्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है एजुकेशन. आज आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लाइक मैं अगर बोलूँ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हमें यही बताते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, यही बताते हैं कि एक बच्चे को कैसे ट्रीट करना है. अगर आप एक टीचर हैं तो आपको बेबी से कैसे कैसे बच्चे से, कैसे यंगस्टर से डील करनी है. बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, ट्यूशन पे या कहीं पे भी, कुछ बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम रहते हैं, तो उस टाइम पे आपको कैसा बिहेव करना है. तो वैसे ही अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, तो उनको ये भी सिखाएं कि वो जो आप सीख रहे हो, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो या एनीथिंग एल्स, उसको आप अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हो. जब तक आप उनको कनेक्ट करना नहीं सिखाओगे, दे विल नॉट बी एबल टू लर्न हाउ टू कनेक्ट द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज. अगर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकली अप्लाई करना ही नहीं आएगा, इट्स मीन दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग. सो द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मी इज इट शुड बी प्रैक्टिकल. वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए. प्रैक्टिकल मीन्स ये नहीं है कि आप सारे एक्सपेरिमेंट करके देखें, सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट में शो करें, नहीं. आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी वॉट एवर यू आर रीडिंग, आपको उसका प्रैक्टिकल यूज आना चाहिए. आपने कोई थ्योरम पढ़ी, आपने कोई स्टोरी पढ़ी, आपने कुछ भी, कोई भी नोवेल पढ़ी, तो क्या आपको उस नोवेल से, उस स्टोरी से कुछ मोरल मिला? क्या आपने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया? दिस डिफाइन द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन हमको एबल बनाती है कि हम हमारे लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को ना केवल देख सकें, बल्कि उसके अकॉर्डिंग वर्क भी कर सकें. जैसे हम कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है स्टैटिक नहीं है, वो बहुत फ्लिकल है, बहुत ज्यादा मूवेबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है. कब कौन सी कंडीशन आके खड़ी हो जाती है लाइफ में, पता नहीं रहता. उस टाइम पे आपको अपनी नॉलेज का यूज करना आना चाहिए. देन ओनली यू विल बी कंसिडर एज एजुकेटेड पर्सन. आज बहुत सारे पर्सन है हमारे इंडिया में, फॉरेन में या पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने एजुकेशन गेन नहीं की है, जिनके पास मार्कशीट में गुड मार्क्स नहीं है, बट स्टिल दे आर मोर एम्प्लॉय, they are earning more than the educated person. They are having much money any other person.
बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी मार्कशीट में 50% भी नहीं होंगे, बट दे गेट सक्सेस इन आईएएस एंड द यूपीएससी एग्जामिनेशन. व्हाट इज दिस? आर दे नॉट कंसिडर एज एजुकेटेड पर्सन? क्या उनको हम एजुकेटेड पर्सन नहीं मानेंगे? मानेंगे. बट दे हैव नॉलेज एंड दे नो हाउ टू अप्लाई द नॉलेज इन प्रैक्टिकल फॉर्म. दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज एजुकेटेड पर्सन. Now, in simple word, what is education? Education is not about getting good grades. मतलब सिर्फ आपको good grades नहीं लेनी है. आज के टाइम पे हम देखें तो बच्चे भी बोलेंगे कि हमें A plus चाहिए. What is the true meaning of A plus? अगर आप A plus लेंगे तो ही आप IAS IPS बनेंगे, तो ही आप यूपीएससी क्रैक करेंगे, या तो ही आप इंजीनियर या डॉक्टर बन पाएंगे. No, not like that. Many kind of students are there who got 45% in 10th and 12th, but still they cracked the UPSC in first attempt. What is this? They are trying to apply the practical knowledge. Education is not about the memory test. मतलब आप सब कुछ रट लो, आपने पूरी बुक रट के बैठे हो, आप पूरी डिक्शनरी याद करके बैठे हैं, तो क्या आप नॉलेजेबल हैं? आई डोंट थिंक सो. ऐसा नहीं हो सकता. अगर आपने पूरी डिक्शनरी भी पढ़ी है, आपने पूरी बुक भी रटी है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक आप उसको इंस्टेंट अपनी लाइफ में यूज नहीं कर सकते, उसको प्रैक्टिकल नहीं माना जाएगा और उसको एजुकेशन भी नहीं माना जाएगा. एजुकेशन जस्ट डजंट मीन टू अक्वायर गेटिंग नॉलेज. सिर्फ नॉलेज गेन कर लो, आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से नॉलेज गेन कर लो. आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो नॉलेज मैं गेन कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, क्या उसका पर्सपेक्टिव सही है. या आज यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं. किसी का कंटेंट बहुत बेस्ट होता है, किसी का कंटेंट बहुत बहुत मीडियम टाइप का रहता है. तो जो ये कंटेंट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पे, गूगल पे, हम सब पे बिलीव कर ले, ऐसा तो हमारी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है. हम क्या सर्च करते हैं? जो बेस्ट हमको आंसर दे दे, जो बेस्ट हमको डिस्क्राइब कर दे सिंपल वर्ड्स में, शॉर्ट वर्ड्स में, और जो हमारे माइंड में स्टिक हो जाए. तो ऐसे ही अगर आप एजुकेटेड पर्सन हो और आपके ग्रेड ए है, ए प्लस है, इट डजंट मीन कि आप बहुत ज्यादा ऑनरेबल स्टूडेंट हो, बहुत ज्यादा ही अच्छे ग्रेड लाने वाले हो, तो ही आप एजुकेटेड कहलाओगे. आपकी नॉलेज आपको एजुकेटेड, आपको लिटरेट और आपको इलिटरेट बनाती है. अगर आप मैकेनिकल टर्म में, अगर आप मेडिकल टर्म में अच्छे हैं और आपकी ग्रेड्स अच्छी नहीं है, डजंट मीन कि आप इलिटरेट हो. आज बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनने अपनी 7th की स्टडी भी कंप्लीट नहीं की, बट दे आर नोन एज बेस्ट बिजनेसमैन. व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या वो एजुकेटेड? अभी हम काउंट करेंगे कि आप एजुकेटेड हो, आप एजुकेटेड नहीं हो? नहीं. तो मेन एजुकेशन बेस्ड होती है आपकी नॉलेज पे. आप बुक पढ़ रहे हो, आपने उसमें से कितना गेन किया? आपने भले एक दिन में 5 चैप्टर्स यू हैव रेड इन वन डे, बट हाउ मच यू हैव गेन फ्रॉम दैट? आपने उसमें से गेन कितना किया? आपको अगर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें से आपने सिर्फ 5 लाइंस को रिमाइंड किया है, 5 लाइंस ऐसी हैं जो आपको पर्टिकुलर समझ में आई है, then these 5 lines considered as a knowledge, and these 5 lines you can be able to apply in your practical life, and then only you will be considered an educated person. आज के टाइम में अगर हम टुडे सिनेरियोज की बात करें तो इन टुडे सिनेरियो the education is just like you just have to learn each and everything that is written in your notebook, in your book, that is presented on the Google related to topic that you are searching for, and that is presented on the YouTube, whatever the topic you are preparing for. This is the knowledge, this is the education. If you didn't remind it, if you didn't mug up it, then you are not educated. आप अच्छे लर्नर नहीं हो, हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं. बट क्या ये सही है? According to me, this is not correct way to judge any other student, any person or anyone else. आपको अगर किसी को जज करना है तो आप उसके प्रैक्टिकल नॉलेज पे जाए. मैं बार बार फोर्स कर रही हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज इज मस्ट इन टुडेज लाइफ. अगर आपको अपनी लाइफ के कंडीशन से, प्रैक्टिकल लाइफ से जज करना, प्रैक्टिकल लाइफ में चलना ही नहीं आएगा, आपको उस पर स्टैंड करना ही नहीं आएगा, तो आपकी एजुकेशन, आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री क्या हेल्प कर सकती है? नथिंग. हम किसी पर्सन को पढ़ा रहे हैं, उसको किस पर्सपेक्टिव में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वो कितना गेन कर रहा है, उसको प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर रहा है, इसी पे बेस्ड रहता है आपकी एजुकेशन. हम किसी को डेफिनेट स्ट्रक्चर तो कभी भी नहीं दे सकते. हम सिर्फ जज कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, लिटरेट है, इलिटरेट है. व्हाट इज दिस?
ये हमारा सिनेरियो कि हम उस पर्सन को कैसे देख रहे हैं। पर आज के टाइम में हम लोग पर्सन को जज करते हैं कि उसके ग्रेड्स क्या है, A+ है, 95 है, 90 है, क्या परसेंटेज है, उसी के बेस पर उसको जज किया जाएगा। अगर 95 परसेंटेज है देन वो बहुत गुड स्टूडेंट रहा होगा। अगर A+ है तो बहुत गुड स्टूडेंट रहा होगा। अगर B+ है या आपके 50 या 60% है तो वो तो एजुकेटेड ही नहीं है, वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। व्हाट इज दिस? हो सकता है कि जिसके 50% है उसकी नॉलेज 90% से ज्यादा हो, 90% ने सिर्फ मगअप कर लिया हो और 50% ने सब समझ के किया हो, उसको सब कुछ आता हो। So I just want to say that education not defines to mug up each and everything that is presented in a notebook, on your sheet, in a Google, on the YouTube. It should be according to your life, according to your mind, according to your practical knowledge. It is very difficult to give one definition to education. एजुकेशन को हम एक डेफिनेशन दे ही नहीं सकते पर्टिकुलर। आप एजुकेशन को क्या बोलोगे? कुछ लोगों के लिए एजुकेशन मार्क्स गेन करना है, कुछ लोगों के लिए एजुकेशन knowledge gain करना है. Some people consider it as to gain skills. Some people consider it as to be a good behavior is known as educated person. So we can't even define education in simple words. In brief, education have different type of applications, different type of definitions also for different peoples. As I take the example of, I think all has watched the movie that is Three Idiot. उस थ्री इडियट में भी सबसे पहले बोला है कि नॉलेज के पीछे भागे आप तो आपकी सक्सेस ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। अगर आप बुक्स को रट लेंगे तो बुक से सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि कौन सी डेफिनेशन कौन से पेज नंबर पे किस राइटर के थ्रू लिखी गई है। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते, तब तक उस नॉलेज का काम ही क्या है। अगर आप उस नॉलेज को, आपने एक डेफिनेशन भी पढ़ी है किसी मैकेनिक की, किसी बहुत अच्छे राइटर की, और आप उसको इंस्टेंटली अपने माइंड में रख के उसको अपने लाइफ में यूज कर सक रहे हैं, then only you will be considered as educated. अगर हम बोले बहुत सारे फिलोसोफर हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सारे स्टेट्समैन, पॉलिटिशियंस, all are having different type of definition for education. All are having. So we can't even say that education is just like to get good marks, to get good knowledge, to get good grades. So also, it should be to get good skill, to get good practical knowledge, not only the theoretical knowledge. You must have the good practical knowledge that you can apply in your practical life as you are in need of that. There are many kind of circumstances in our life. There are many kind of circumstances in every type of situations on which we have to work according to that. If you have knowledge, then you will be able to sort out that type of problems and that type of situations. If you don't have, if you just have mug up the all type of definition sort of pages, so I don't think that you will be able to sort out the problems that are going to become in your life and going to be stuck in your life. If you really want to be educated, so just try to be practical. हर एक चीज को प्रैक्टिकल देखें, हर एक चीज को प्रैक्टिकल लेके देखें। मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी है, क्या इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज है, क्या मैं उसको उस टाइम पे प्रैक्टिकली यूज कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, एनीथिंग। अगर हम देखें, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी एंड इट्स कंसेप्ट इज डायनामिक। एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, जैसे हम कहते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे हम फील करते हैं एज हॉट कोल्ड, वैसे एजुकेशन एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट है कि आप उसको देख तो नहीं सकते बट आप उसको गेन जरूर कर सकते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है कि आपको एजुकेटेड होना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट थिंकिंग प्रैक्टिकली, देन आई डोंट थिंक दैट द एजुकेशन मीन्स अबाउट यू। आपके लिए एजुकेशन का कुछ मतलब भी होगा अगर आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर हम आज की सोसाइटी में देखें, आप किसी भी सोसाइटी में जाएं, किसी भी कॉलोनी में जाएं, दे ऑल you you will also find, see my child got 90%, see my child got 85% and 90%, and the student who got 45%, they are just humiliating. Why? I think maybe they should have more knowledge. I think it it is not correct to judge anyone with their percentage. I don't think this is an education. हम भी
आज एजुकेटेड पर्सन अगर कहलाएंगे, अगर हम भी एजुकेटेड पर्सन है, तो क्या हमारे पास वो एजुकेशन है जो हम उसको अपनी लाइफ में यूज कर पा रहे हैं? अगर मैंने सारी बुक्स रट ली हैं, अगर मैंने सारी बुक्स को मगअप कर लिया, पैरेट कर लिया, पैरेटिंग कर लिया है, पर मैं उसको अपनी लाइफ में ही नहीं यूज कर पा रही हूँ, मेरे लिए ऐसी नॉलेज का मतलब ही क्या है जो मुझे मेरे टाइम पे मेरे डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस आ रही हैं उस पर यूज करने में हेल्प ना करे। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, जो वर्ड है, जो मेन बेसिक वर्ड है, एजुकेशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, ऑफ मग अप, ऑफ पैरेटिंग। इट जस्ट टू ट्रेन योर इनेट सोल, अपने इनेट सोल को ट्रेंड करना, अपने माइंड को ट्रेंड करना, कि हमारा माइंड इतना पावरफुल हो जाए, जो हमने नॉलेज गेन की है उसको एट अ टाइम यूज करें। तो वही नॉलेज है, वही एजुकेशन है। अगर आपके पास ऐसी एजुकेशन है जो आपको एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे यूज आ रही है, तो ही आपकी एजुकेशन यूजफुल है। और एजुकेशन, आप अगर अभी आप बुक खोल के बैठे हैं और आपने पूरी बुक आधे घंटे में पढ़ ली और उसमें से आपको एक लाइन भी समझ में नहीं आई, तो आई थिंक आपने कोई नॉलेज ही नहीं गेन की। और अगर आपके पास कोई नॉलेज है ही नहीं, तो उसको हम एजुकेशन तो कंसीडर कर ही नहीं सकते। सो एज आई टोल्ड यू इन बिगनिंग, एजुकेशन इज नॉट जस्ट लर्निंग अ फैक्ट, सिर्फ फैक्ट को लर्न कर लेना, जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, जो मेरी बुक में लिखा है उसको सिर्फ रट लो, उसको सिर्फ मगअप कर लो, ये नहीं है। एजुकेशन एक प्रोसेस है, एक बहुत ब्रॉड प्रोसेस है, जिसमें हमें अपने माइंड को इस तरीके से बिल्कुल ट्रेन करना होता है कि वो प्रैक्टिकली हमारी जो माइंड में जितने भी नॉलेज है उसको टाइम पे किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे यूज कर सके। उसी को हम एजुकेशन कहेंगे और उसी को लिटरेसी भी कहा जाएगा। एजुकेशन एक प्रोसेस है in which and by which knowledge, character, skill and personality can be modified। हम किसी की भी कैरेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं एजुकेशन से। आज आप प्रॉपर वे में बात करेंगे, आज आप अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, आज आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, आज आप किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन पे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स मीन्स यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। इसी को हम एक प्रैक्टिकल नॉलेज कंसिडर करते हैं, और ये मेरे अकॉर्डिंग यही एक ट्रू मीनिंग है एजुकेशन का। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट एजुकेशन does not a narrower means, education is very broad, and it just means to apply your knowledge in practical way, to gain your knowledge and try to use it in your present life, in your future scenario, in your future condition, in your problematic situation, and anywhere else where you can use it. So don't try to mug up each and everything that is presented, that is already written in your book. Think about this, that book is already written by a human being. Book भी एक human being ने लिखी है, वो भी किसी ह्यूमन ने ही लिखी है, और उनने भी अपने कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ही अप्लाई की होगी, तभी तो वो इतने लिटरेट हुए हैं। आज हम भी कोई बुक लिखेंगे तो तब हमारे पास जो नॉलेज होगी उसी को तो लिखेंगे, हम दूसरी बुक से एज इट इज कॉपी पेस्ट तो करेंगे नहीं, हम अपनी नॉलेज लिखेंगे। देन this should be considered as a knowledge, and then only I must say, the person who is writing the book, who is using their knowledge in problematic situation, they are educated, they are knowledgeable. If you have knowledge, if you have a skill, if you have good character, and if you have power to use your knowledge in particular situation in proper way, then only you will be considered as educated. I just want to say the education should be practical, not just only it just not only mean to mug up all the things. Thank you. Thank you, ma'am, for that talk on the true meaning of education. It's a very vast subject, and I'm glad you had the courage to take it on. So, good evening, everybody. And before we leave, I request you to watch the Detox, our disruptive literacy movement, my global dream, which has been an initiative by Dr. Sunita Gandhi since 2014. This is to ensure everyone's participation in helping India achieve total numeracy and literacy by a people's movement. The whole idea is that each one teaches one
to become literate. And those of us who can afford to teach more than one should be doing that. And we have several talks on this every day. And for more information, please go to 740-840-1000 for the talks that you would like to listen to. So thank you, Wadhwani ma'am, for this evening's talk, and all the best to you. Thank you, sir. Thank you to give me the this type of opportunity to speak on this platform. Thank you, ma'am. Most welcome. And see you again tomorrow. Good evening, good night, and see you again tomorrow.